Next part is casting of method. The casting of object reference depends upon the relationship of the class involved in the same hierarchy. Okay. माने जति गोटे क्लास सेम हायरार्की रे थिबो माने पेरेंट आउ चाइल्ड रिलेशनशिप रे थिबो तबे सेते बेले हमें कास्टिंग करि परिबा ऑब्जेक्ट कास्टिंग करि परिबा बुझिला this casting is of two type one is upcasting another is downcasting so two type of casting we are using upcasting another is downcasting upcasting is usually done along with the class hierarchy in a direction from derived to the base class माने डिराइव क्लास माने चाइल्ड क्लास रो बेस क्लास तक जदि हमें रेफर करबा तेरा कहजिबा अपकास्टिंग बुझियला डिराइव क्लास में चाइल्ड क्लास तब बेस क्लास में पेरेंट क्लास सो एठी देखो एम्प्लॉय क्लास मैनेजर क्लास एंड सुपरवाइजर क्लास एठी मैनेजर और सुपरवाइजर क्लास एटा डायरेक्ट का कहउछोंदी एम्प्लॉय क्लास को डायरेक्ट करछोंदी हां एटा कहजिबा कोन ना अपकास्टिंग upcasting okay. So first of all we are creating a object of class हमें employee class रा object बनेले emp1 new employee emp employee emp2 new employee बुझियला दीटा ऑब्जेक्ट बनेले तापर मैनेजर mgr equals to new manager हमें चाइल्ड क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले चाइल्ड क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले प्रथम पेरेंट क्लास हला की एटा हला पेरेंट क्लास तार दीटा ऑब्जेक्ट बनेले आउ एटा दीटा मैनेजर आउ सुपरवाइजर हला चाइल्ड क्लास तार ऑब्जेक्ट बनेले अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग अपकास्टिंग ता कहउछ परे अपकास्टिंग मींस usually done class hierarchy in direction from derived class to the base class माने derived class कोन करिवो base class रो फंक्शनैलिटी टा को कॉल करिवो derived class का base class का फंक्शनैलिटी कॉल करिवो फंक्शनैलिटी कॉल करिवो बुझियला and base class is employee और direct class है मैनेजर और सुपरवाइजर यस हमें बेस क्लास रा ऑब्जेक्ट बने की डिराइव्ड क्लास रा सब फंक्शनैलिटी कॉल करबा बेस क्लास रा ऑब्जेक्ट देले से ना अपकास्टिंग इज द टाइप कास्टिंग ऑफ ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू ए पेरेंट ऑब्जेक्ट ओके टाइप कास्टिंग हां instead of all the member we can access the specified member of the child class माने चाइल्ड क्लास रा जदी स्पेसिफिक मेंबर को हमको कॉल करबा को हबो बुझे होची हां तो सेही समय रे हमें कास्टिंग टा यूज करबा so upcasting is a type casting of a child class object to a parent class upcasting can be done implicitly automatically we upcasting टा हम कोन काम करियो पड़िबो upcasting can be done implicitly upcasting gives us flexibility to access the parent class member but it is not possible to access all the child class member using this feature and हमें parent class रा सब फंक्शनैलिटी को कॉल करि परिबा by using of upcasting instead of all member we can access the specific member of the child class okay हमें सब मेंबर कॉल न करिकि जदि चाइल्ड क्लास रा ओटे पर्टिकुलर मेंबर को हमें कॉल करिया चाहू छे ताले हमें अपकास्टिंग यूज करि परिबा बुझियला upcasting is the typecasting of child object to
parent object. Implicitly means automatically. Automatically. हाँ implicitly जो लिखना था साइड डॉक्टर होते देखो automatically. I did that. Okay, so it is the typecasting of the child object to the parent object. Okay, upcasting can be implicitly. Okay, implicitly it is happen upcasting. Automatically upcasting is happen. Okay, upcasting. Upcasting gives us flexibility to access the parent class member, but it is not possible to access all the child class member using this feature. Parent class member call kari pariba, child class sabu member call kari pariba. Instead of all the members, we can access some specified member of the child class. For instance, we can access the overridden method. Overridden method माने जो मेथड टा parent और child class रे जो मेथड टा थिबो माने parent class मेथड टा को child class यूज करथिबो सेम मेथड टा को हमें ऑफ का overridden means we कालीबा पढथिले overridden. Overriding means the function defined in the parent class. Same function is used in the child class with a different functionality.
माने void show function रहला कोठी parent रे show function गोटे रहला same function टा हमें child class रे यूज करले किंतु with different functionality Different functionality ता functionality अलग रहल ना extra order extra order जदि तुम टाइटल कोन होइला मिश्र बाबा टाइटल में मिश्र माने कमे कोन कलो नेम टा को ओवरराइड कलो नेम टा को यूज कलो किंतु तुमरो नेचर and your father nature is different so that is a overriding of a method. Overriding means same function we are using parent and child but that functionality is different means feature is different तो सही overriding method टा को हमें कॉल करि परिबा by using of upcasting थ्रू रे हमें overriding method गुडा को कॉल करि परिबा बुझिला upcasting gives us flexibility to access the parent class member मैंने हमें parent class member को कॉल करि परिबा but हमें child class रो सब member को कॉल करि परिबानी child class रो को member को कॉल करि परिबा ना child class रो specific member मान को कॉल करि परिबा को specific member ना जो member टा parent class रे थिबो बुझिला the next part is कौन करियो छ the downcasting means the typecasting of a parent object child a downcasting means typecasting of a parent object to a child object the downcasting cannot be implicitly ना इटा जो अपकास्टिंग रे रिवर्स हां अपकास्टिंग रे रिवर्स ना ऑटोमेटिकली होबनी डाउनकास्टिंग ऑटोमेटिकली हबन ना तो अपकास्टिंग रा ऑटोमेटिकली हबो जे जो अपकास्टिंग रा से ये पेरेंट क्लास नो चाइल्ड क्लास बतेली पर upcasting gives us flexibility to access the parent class member okay to access the parent class member but it is not possible to access all the child class member so you have to access only the child specific child class member like overriding method जो मेथड टा parent और child class भीतर थिबो बुझिला the first we are creating a object of class employee emp1 new employee emp2 new employee means we are creating a object of parent class now we are creating a object of child class okay now
we are giving a equality. EMP1 equals to manager, EMP2 equals to supervisor. SPR होची कहार ऑब्जेक्ट, सुपरवाइजर ऑब्जेक्ट, सुपरवाइजर। हां तो आमे कोन कले ना पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कले मैनेजर सहित, माने मैनेजर क्लास रो फंक्शनलिटी टाको माने चाइल्ड क्लास रो फंक्शनलिटी टाको पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रे हमें कॉल करि परिबा। आ सेंती जेतडा हमें EMP2 ऑब्जेक्ट रो रे सुपरवाइजर क्लास रो फंक्शनलिटी टाको भी कॉल करि परिबा। तो EMP2 टा सुपरवाइजर क्लास रो फंक्शनलिटी टाको कॉल करि परिबा EMP2 रे। EMP2 रे। अच्छा तो EMP1 टा EMP2 टा तो एम्प्लॉय क्लास रो दीटा ऑब्जेक्ट हमें बनेले EMP1 एंड EMP2। काली आसी होता क्लास ना कौन काली क्लास काली हाँ काली मन पकड़ दे काली 3 तारीख को काली मेरा एग्जाम अच्छे IPS दियो था 3 तारीख काली क्लास कॉल करी एठी हमें क्लास एम्प्लॉय ଗୋଟେ क्लास डिफाइन करले एम्प्लॉय मैनेजर एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉय हला एटा होची पेरेंट क्लास एटा हला चाइल्ड क्लास एटा करंट क्लास एटा थर्ड क्लास चाइल्ड क्लास ए एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉय रहिला हां एम्प्लॉय क्लास रे वर्क फंक्शन रहिला वर्क फंक्शन रहिला चाइल्ड क्लास रे भी वर्क फंक्शन रहिला तापरे मु एठी एम्प्लॉय क्लास रा फंक्शन टा को चाइल्ड क्लास रे कॉल करली एम्प्लॉय क्लास रे फंक्शन रे चाइल्ड क्लास से कॉल करा हला केमदी कॉल करा हला सुपर मेथड थ्रू रे सुपर डॉट वर्क बुझियला एटा जे सेटा खाली पब्लिक वर्ड वर्क थिला पेरेंट क्लास रे हां क्लास रे पब्लिक वर्ड वर्क थिला हम सुपर क्लास का मतलब से जो पब्लिक वर्ड वर्क का सुपर डॉट वर्क है ना हां काटे सुपर डॉट वर्क का अछि तो जिन सुपर डॉट वर्क माने पेरेंट क्लास फंक्शन टा को हमें चाइल्ड क्लास रे कॉल करलो कॉल करा तापर एठी मु देखली क्लास वर्कर एक्सटेंड फ्रॉम एम्प्लॉय आ गोटे क्लास बनेली वर्कर एक्सटेंड फ्रॉम एम्प्लॉय एठी भी रहला वर्क फंक्शन तो तीनटा फंक्शन ओवरराइड हला वर्क फंक्शन टा मैनेजर क्लास रे ओवरराइड हला आ वर्कर क्लास रे भी ओवरराइड हला ओवरराइड हला ओवरराइड पढ़नो तले की हां हां सेम फंक्शन इज यूज्ड इन द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास एठी ओवरराइड हला परे एबे मु कोन कली ना मेन मेथड भितरे प्रथमे एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली एम आ गोटे एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली एस तापर मैनेजर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली मैनेजर एम इक्वल्स टू न्यू मैनेजर वर्कर w इक्वल्स टू न्यू वर्कर दीटा का ऑब्जेक्ट बना हला अच्छा तापरे मु जेते लिखबी em इक्वल्स टू m em पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करली रेफरेंस पास करा हला हां em इक्वल्स टू m s इक्वल्स टू w माने पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट em ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु तेरा वर्क फंक्शन को कॉल करबी से मैनेजर क्लास रा ऑब्जेक्ट को फंक्शन टा को कॉल करिवो बुझियला आ एस ऑब्जेक्ट रे जेता वर्क फंक्शन को कॉल करबी से वर्कर क्लास रो जो फंक्शन टा अछि ताको कॉल करिवो वर्कर क्लास को फंक्शन अछि वर्क अछि ताको कॉल करिवो बुझियला माने से केवल जो फंक्शन टा ओवरराइड अछि से फंक्शन टा को कॉल करि परिबा हमें तरा अपकास्टिंग टा यूज करिबा मिलते अपकास्टिंग यूज करिबा ओवरराइड मेथड को कॉल करियबो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रे पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रे चाइल्ड क्लास रो फंक्शनलिटी हमें कॉल करबे बुझियला तो एटा अपकास्टिंग ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो जेटी कोनोसी मेथड हम यूज करने खाली इक्वल टू पास करके हमें ऑब्जेक्ट पास कर दे। हां I am an employee, I am a manager, I am a worker. Okay. yes sir parent class object through रे child class रो जो extra functionality अछि ताको कॉल करबा by using of down casting up casting रे कोन होतला ना हम overriding function गुडा को कॉल करते जो function गुडा को parent रे अछि आ child रे अछि बे down casting रे कोन हबो ना child class रो जो extra जो function रहउछि ताको हमें कॉल करि परिबा बुझिला थ्रू parent class object जो ऑब्जेक्ट माने अपकास्टिंग रे भी सही थ्रू पैरेंट क्लास हबो upcasting is automatically happen but you only call the overriding method which is present in the parent and child. First we define class employee. Class employee work function parent class. Manager extends from employee. Manager is a child class and extend वाला employee class है. एठी भी रहिला work function. बुझिला तो एठी हमें parent class रा function टा को कॉल करले. Parent class function टा को हमें कॉल करबा एठी हम चाइल्ड क्लास के फंक्शन टा कॉल करले ना चाइल्ड क्लास फंक्शन कॉल करले हमें extends करले inheritance pass करले. Extends keyword is used for passing the inheritance. बुझिला तो super dot work माने parent class function टा एठी कॉल होला. तो मैनेजर क्लास रे गोटे फंक्शन रहला कोन ना मैनेज फंक्शन एठी मैनेज फंक्शन रहला मैनेज फंक्शन टा रहला बुझिला तापर मु एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली रेफरेंस दली मैनेजर क्लास मु सर्किट ले एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली रेफरेंस दली मैनेजर क्लास मु माने चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दली आ एई ऑब्जेक्ट रे ए जो ईएम ऑब्जेक्ट रे मु चाइल्ड क्लास जो वर्क फंक्शन टा को कॉल करिवि सी कोन करिवो ना चाइल्ड क्लास रा वर्क फंक्शन टा को कॉल करिवो चाइल्ड क्लास के रहला मैनेजर मैनेजर रा वर्क फंक्शन टा को कॉल करिवो एटा मैनेजर क्लास रे वर्क फंक्शन अछि मु जता बळे पेरेंट क्लास रा ऑब्जेक्ट बने की रेफरेंस देबी चाइल्ड क्लास को से ऑब्जेक्ट थ्रू रे जदी मु वर्क फंक्शन को कॉल करिवि तारे से फास्ट कोन करिवो वर्क फंक्शन टा पेरेंट रे अछि चाइल्ड रे अछि किंतु एठी कोन करिवो ना चाइल्ड क्लास रा फंक्शन टा को कॉल करिवो बुझियला चाइल्ड क्लास रे फंक्शन टा कॉल करिवो टू पेरेंट क्लास नो चाइल्ड क्लास फंक्शन टा को कॉल करिवो पेरेंट क्लास को कॉल करिवो अच्छा पेरेंट क्लास को काई टू करू हमें खाली कॉल करिवो हमें कोडी कॉल करछु मेन मेथड रे कॉल करछु मेन मेथड बुझियला आ एई जो ईएम ऑब्जेक्ट रे मु जदी मैनेज फंक्शन को कॉल करी मैनेज गोटे एक्स्ट्रा फंक्शन अछि चाइल्ड क्लास रे जोटा कि से पेरेंट क्लास रे नाही देखो एटी पेरेंट क्लास रे मैनेज फंक्शन नाही
तो से जो em ऑब्जेक्ट रे जदि मु मैनेज फंक्शन को कॉल करिवि ताले से मते एरर शो करिवो ना से करिवो एरर शो करिवो ना माने पूरा एरर शो करिवो एरर हां माने भूल हो प्रोग्राम टा अच्छा बुझिला तापर मु कोन करिवि ना मैनेज सेति पई कोन हबो ना जो सिचुएशन ने मु पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी से रेफरेंस दबो चाइल्ड क्लास को जो सिचुएशन ने मु पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी रेफरेंस देबी चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास स्टूडेंट मैनेजर मैनेजर सेही ऑब्जेक्ट थ्रू रे जदी मु चाइल्ड क्लास रो सब फंक्शनैलिटी को कॉल करबा चाहू छी ताले मते ऑब्जेक्ट कास्टिंग करबा को पड़िबो ऑब्जेक्ट हैना ऑब्जेक्ट कास्टिंग करबा को पड़िबो ऑब्जेक्ट कास्टिंग तो मैनेजर एम गोटे ऑब्जेक्ट बना हला मैनेजर को ब्रैकेट रे लिखा हला मैनेजर होची चाइल्ड क्लास em माने em जो ऑब्जेक्ट रहला एठी जो बनै छे ये रेफरेंस दे देला काहा को m ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे देला तापरे m डॉट मैनेज फंक्शन रे हमें कोन करिवा ना चाइल्ड क्लास रा फंक्शन टा को कॉल करि परिबा चाइल्ड क्लास रा फंक्शन टा टी कॉल करि परिबा वेट हैना तमे पेरेंट क्लास रा फंक्शन टा कॉल हला देखला आया माने एम्प्लॉई तापरे मैनेजर फंक्शन कॉल हला तापरे हमें जो मैनेज फंक्शन टा को कॉल करले से देखला कोन मैनेजिंग मैनेज फंक्शन कोन अछि मैनेजिंग अछि और मते मैनेजिंग लिखेला बुझला मैनेजिंग अछि मैनेजिंग शो कला casting object is used when you require a casting when you want to access the full functionality of the child class by the help of parent class object then we are using casting instance of operator it is a special operator that we are using it is used to test the type of the object so when you are creating a type of a object whether your object is giving a reference to which class for checking that instance of operator is used the instance of operator is used to check whether the type of the object whether your object is referencing to which class मोर ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट कहा को रेफरेंस करछे सेटा चेक करिया पे मु टाइप कास्टिंग यूज करिवे हैला अपवर्ड कास्टिंग इज डन इम्प्लिसिटली अपवर्ड कास्ट इज डन ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड कास्ट मस्ट बी चेक बाय द सब क्लास एंड चेक बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली जरा कर लो क्या आउट कर अप कास्टिंग ऑटोमेटिकली होतला ना देखेले हां डाउन कास्टिंग पे हमें डाउन कास्टिंग करले हां ब्रैकेट भीतर पास करी the object type is checked at the runtime when the runtime error is occurred okay class employee we're defining a employee class manager extends from employee manager is a child class director extends from employee
director is a child class, so all are extends from employee class. बुझियला तापर मु ओटे all are extends from parent class. parent class. Parent class is employee. Parent class is employee. So now we are defining a function. Function name is React function. Now we are creating a object of manager class. E is the object of manager class. Object of manager. E is the object of E is the object of employee class. Object. Public void React employee E. Employee. तापर मुठी मेन मेथड भितरे चेक इंस्टेंस क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली. चेक इंस्टेंस ई ऑब्जेक्ट न्यू चेक इंस्टेंस चला तो मु कहार ऑब्जेक्ट बनेली चेक इंस्टेंस ए क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली चेक इंस्टेंस क्लास माने ए क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली ए क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाला बुझला तापर ए क्लास रा ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु फंक्शन को कॉल करिवि मो फंक्शन ना कोन अछि रिएक्ट फंक्शन रिएक्ट फंक्शन टा को मु कॉल करिवि रिएक्ट फंक्शन को जतरा कॉल करिवि एठी कोन अछि एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट अछि एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर अछि जेहेतु गोटे ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर अछि मु तरा फंक्शन टा को आज ए पैरामीटर अछि फंक्शन रा पैरामीटर रे ऑब्जेक्ट अछि जेहेतु फंक्शन रा पैरामीटर रे ऑब्जेक्ट अछि मु ए जो ऑब्जेक्ट टा ए ऑब्जेक्ट रे यू ई ऑब्जेक्ट रे रिएक्ट फंक्शन टा को कॉल करली बुझेला तापर मु एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली से ऑब्जेक्ट टा को आज ए पैरामीटर पास करली अपन रे कॉल करले से कॉल करले फंक्शन टा को डाकीबा को कॉल करे कॉल डॉट मींस कॉल इट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मींस कॉल टू whom react function then react function रे कोन अछि पैरामीटर अछि एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट एनो एठी ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर गला react ob अछि react ob हां ob is the object of whose class employee class employee class ob is the object of employee class हां ए ob ऑब्जेक्ट एठी पास कराला ए ob ऑब्जेक्ट कोठी जीवो एठी चेक हबो ये ऑब्जेक्ट रे स्टोर हबो ये ऑब्जेक्ट स्टोर हबो चेक हबो तापरे ob is the instance of manager no ob टा कहार ऑब्जेक्ट बनै छै हमें ob टा कहार बनै छै एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनै छै एठी एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनै छै एठा आसे कि चेक हबो he is the instance of manager no ob manager इंस्टेंस नुहे डायरेक्टर अभी नुहे ना तन कहार हबो एम्प्लॉय देखिए वो एल्स ब्लॉक रे दिस इज एन एम्प्लॉय एटा हमें चेक इंस्टेंस क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले तापरे एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाले ob तापरे जो चेक इंस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट रे हमें रिएक्ट फंक्शन टा को कॉल करले तो चेक इंस्टेंस यूनिट ए चेक इंस्टेंस क्लास रे गोटे फंक्शन अछि रिएक्ट फंक्शन हां रिएक्ट फंक्शन टा को कॉल कराला यूई ऑब्जेक्ट हां यस रिएक्ट फंक्शन टा चेक इंस्टेंस से आगु अछि जेटा एडियर्स अच्छा ना क्लास चेक इंस्टेंस तबे पब्लिक वॉइड रिएक्ट एम्प्लॉय से फंक्शन टा को एठी कॉल कराला हां बुझेला तारे कॉल करा होची ए फंक्शन ने पैरामीटर कोन अछि ऑब्जेक्ट अछि एम्प्लॉय ये जे तो ऑब्जेक्ट अछि हमें भी एठी रन टाइम रे कोन करिया ओटा ऑब्जेक्ट पास करिवा ऑब्जेक्ट पास करे एठी हम कहार ऑब्जेक्ट पास करले एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट पास करले एठी देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एठी पास करले हां एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इथरा आपण ओबी लिखले आगुडे ऑब्जेक्ट बनाला सेठी खाली रेफरेंस हमें तरे न्यू कीवर्ड लिखिवा ताले हमें ऑब्जेक्ट रे मेमोरी एलोकेट करिवा हमें जे न्यू कीवर्ड न लिखिवा खाली हमें रेफरेंस पास करिवा एठी हमें न्यू कीवर्ड जतरा यूज करले
ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट करले तो एठी ओबी ऑब्जेक्ट को पैरामीटर रे पास करले ये ओबी ऑब्जेक्ट एठी गला एठी स्टोर हला एम्प्लॉय एच बुझिला हां सर e इक्वल्स टू ओबी हे गला हां तापर एठी चेक हला ओबी इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर नो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करा हला हमें जो ओबी ऑब्जेक्ट पास करले से चेक करिवो से ऑब्जेक्ट मैनेजर को रेफर करूची की ना रेफर करू नै डायरेक्ट डायरेक्ट चेक इंस्टेंस होची फंक्शन अच्छा चेक इंस्टेंस होची क्लास हां हमें ऑब्जेक्ट बनेले कहार एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले से ऑब्जेक्ट हमें एठी की पास करले हां एम्प्लॉय रे पास करा हला हां तापर से चेक करिवो से ऑब्जेक्ट रेफरेंस करूची की मैनेजर को नो ना डायरेक्टर को रेफरेंस करूची की ना का को रेफरेंस करिवो एम्प्लॉय को रेफरेंस करूची कारण न्यू कीवर्ड रे हम एठी कोन यूज करूचे इट्स द रिएक्ट जेटा से रिएक्ट का फंक्शन टा को हम कॉल कले एठी ui.react हां हां अच्छा बुझियला जावा टोटल इलेक्ट्रॉन जावा टा तो इनिशियलाइज प्रोग्राम जावा कौन जावा 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 java c is a compiler name translating the program into a byte code for compiling a java application java c is used right अबे देख for रहा कौन compiling a java application java c is used ताकि देखेला कौन this is employee देखेला एबे जदी मु आपको कमेंट दे देबी ए लाइन को कमेंट देकी ए लाइन को एग्जीक्यूट करिवे ताले हमें कहार ऑब्जेक्ट बनेले एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले रेफरेंस देले कहा को मैनेजर क्लास को मैनेजर ए ओबी ऑब्जेक्ट एटी पैरामीटर रे पास कले तापर से एटी चेक हबो एम्प्लॉय क्लास रे ओबी टा रहला ई जगह ओबी पास हला ओबी इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर यस यस काहे की नाम एटी ए लाइन टा एग्जीक्यूट करते एटा मैनेजर एप्लाई ओबी का न्यू मैनेजर तो रेफरेंस का दो मैनेजर को दो हां एटी देखिए हम कौन दिस इज मैनेजर लिखे मैनेजर देखला दिस इज मैनेजर बुझियला यस सर homogeneous collection means creating an object of class in the form of a array. So we are creating a object of class in the form of a array and giving a reference to the same class. Is called as a homogeneous collection. हमें बार बार ऑब्जेक्ट जो क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाउचे बार बार ऑब्जेक्ट न करने की थोरे ऑब्जेक्ट बनेबा इन द फॉर्म ऑफ ए array आ हमें जदी सेम क्लास को रेफरेंस दवा ता को आजिवो homogeneous collection. Collection. Heterogeneous collection means creating a object of class in the form of a array if it is giving a reference to the other class. जेंति कि हमें कार ऑब्जेक्ट बनेले एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले से रेफरेंस का को दला मैनेजर को दला एठी पुनी एम्प्लॉय को दला एठी पुनी इंजीनियर को दला तो creating a object of class in the form of a array if it is giving a reference to the other class it is called the heterogeneous collection. बुझिला collection है ना
क्लास एनिमल वी आर डिफाइनिंग ए क्लास एनिमल एनिमल क्लास रे गोटे फंक्शन रहिला void who am I function okay void who am I function name is who am I okay dog extends from animal dog is a child class then the function is override here who am I function then the function is override hela ni parent class रे same function रहिला child class रे same function रहिले कोन तक को आजिवो overriding को आजिवो तापर cow extends from animal who am I function override hela function snake extends from animal रहिला who am I function extends from animal एटा animal टा कि base animal हला base class तो एबे हमें कोन करले ना क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले एनिमल who am I क्लास ना who am I का फंक्शन बा मेथड override हला चाइल्ड क्लास रे ओवरराइड हां एबे मो पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली रेफरेंस दली स्नेक को डॉग को काउ को हला तापरे जते बेले सेही ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु हु एम आई फंक्शन को कॉल करबी से स्नेक को कॉल करिवो एठी हु एम आई फंक्शन को कॉल करले डॉग को कॉल करिवो एठी हु एम आई फंक्शन को कॉल करले काउ को कॉल करिवो तो रेफरेंस जो न्यू स्नेक को रेफरेंस दला माने ए ऑब्जेक्ट स्नेक को रेफरेंस दला ए ऑब्जेक्ट डॉग को रेफरेंस दला ए ऑब्जेक्ट काउ को रेफरेंस दला जेता बेले मो रेफरेंस रो हु एम आई फंक्शन को कॉल करिवि से स्नेक रो हु एम आई फंक्शन को कॉल करिवो स्नेक और डॉग काउ एवडा एबे देखुची क्लास बोली एटा कोन क्लास बोली बुझिला बुझ पाइला एटा होची क्लास गुडा सब देखा बुझिला से क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाला से ऑब्जेक्ट थ्रू रे मो फंक्शन मान को कॉल करियो बुझिला एबे देखो तो स्नेक जेनेरिक एनिमल डॉग एंड काउ प्रथम देखला स्नेक का नाम का को कॉल करछे स्नेक फंक्शन टा को कॉल करछे एठी तापरे डॉग तापरे ए जो स्नेक रे हमें कोन करले सुपर कीवर्ड यूज करले एठी हमें सुपर कीवर्ड यूज करले सुपर डॉट हुआ माई पेरेंट क्लास रो फंक्शन टा को कॉल करले तो सेति पे एठी देखेला कोन पेरेंट क्लास रो फंक्शन कोन अछि जेनेरिक एनिमल तो देखला जेनेरिक एनिमल तापर हमें डॉग रो फंक्शन को कॉल करले डॉग देखेला काउ रो फंक्शन को कॉल करले काउ देखेला बुझिला